Hello students, so now we are going to talk about acidity of organic compounds. Now this is not that type of acidity which generally take place in your stomach because of improper diet. This is a different types of acidity which is related to organic compounds. First of all, let's discuss the scientific definition or the scientific meaning of the word acidity. Now, acidity is something which is the ability of a compound to donate H+. When the compound is able to donate H+, the compound is said to be acidic. When the compound is able to donate H+ more radially, that means it wants to donate its H+, the compound becomes more acidic. When the compound is not willing to donate its H+, it is said to be less acidic. I hope this makes sense to all of you. So as of now, don't follow the board work in front of you. Just listen to me what I'm telling you. So acidity has something to do with H+, right? When any compound is able to donate it, it would be acidic. When any compound is able to donate it willingly, it would be more acidic. When not willingly, when the compound do not want to donate H+, it would be less acidic. Now, we are going to talk of acidity of organic compounds. As far as organic compounds are concerned, we are going to talk of H+. See friends, please be aware there are many definitions of acid compounds and basic compounds. Okay, but we are going to stick to the definition that when a compound is able to donate its H+, it is said to be acidic. So for organic compounds, we are going to follow the same definition that whenever it is able to donate H+, it would be acidic. Okay, having said that, let's take a general example of an acid. The formula is HA. Now, HA is any kind of acid, any general acid I'm taking for the matter. Now, HA, when I put into water, so basically I'm dissolving this into water, what is happening? The H+ part is getting eliminated, leaving behind the A- part. So this H+ is getting eliminated, which makes the compound acidic. This is H+, which is responsible for the acidity. So जब भी H+ रिलीज होगा वो एसिडिक हो जाएगा. But students generally इस बात को इग्नोर करते हैं about anion. Now I am going to talk about anion. मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? See, आप जरा अपना दिमाग लगाइए. जब भी कोई एसिड पानी में डालने पर H+ प्रोड्यूस करता है तो साथ साथ anion भी तो प्रोड्यूस करता है. So for example, if I have HCl, if I dissolve into water, it will produce H+ and Cl-. Look here, Cl- is an anion. So HCl, an acid, is producing H+. Along with that, it is also producing an anion. And I am going to consider that anion because that anion will going to decide the acidity of the original compound, that is HCl. So हमारे लिए वो एनायन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. और मैंने यहाँ पर एक स्लोगन आपके सामने लिख दिया है. डोंट वरी, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल स्लोगन, इट इज आवर एकेडमिक स्लोगन. व्हाट इज दैट एकेडमिक स्लोगन? The slogan here says that stable the anion, stronger the acid. Look here. When I'm saying this anion is stable, when I'm saying the anion is stable, it would form the more acidic compound. कैसे? जरा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं. लॉजिकल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा. ध्यान से देखो, मेरे बोर्ड वर्क को ध्यान से देखिए सभी लोग. ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन. आई होप यू आर पेइंग अटेंशन. यस. नाउ आई हैव, just like I told you that I have HA and I dissolve into water, I got H+ and A-. The reaction is reversible. That means it could go in forward direction as well as in the backward direction. Now I'm getting an ion. This is an ion. Now imagine this anion is more stable. Just imagine that this anion is more stable. When it is more stable, as per chemistry, the reaction should go in the forward direction where I'm getting an ion. What I told you, imagine that this anion is a stable anion. When this anion is stable, that means it want to form, right? ये बनना चाहता है. If it want to form, that means reaction will favor forward direction, जहाँ पे anion बन रहा है. Now, when the forward direction में anion का formation हो रहा है, तो automatically H+ भी तो निकल रहा है. क्या आप इस बात को नोटिस कर रहे हैं? इसी को तो सब लोग इग्नोर करते हैं. सी, जब एनायन स्टेबल है, दैट मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इट्स ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक है कि H+ भी निकलेगा. तो अगर एनायन स्टेबल है तो H+ तुरंत निकलेगा. अगर एनायन स्टेबल है तो H+ ज़्यादा निकलेगा. सो पॉइंट ये है, द पॉइंट इज जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज़्यादा या उतना जल्दी H+ निकल जाएगा. और जितना जल्दी H+ निकल जाएगा ये कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा. आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू. व्हाट आई टोल्ड यू, अगर एनायन स्टेबल है
तो H+ भी बनेगा, H+ बनेगा तो कंपाउंड ओरिजिनल वाला एसिडिक हो जाएगा। तो therefore the slogan stable the anion stronger the acid। तो अब हमें अगर किसी भी कंपाउंड की फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिस्कस करनी है तो प्राइमरली एलिफेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड हम लोग 12th में करेंगे। सो इफ आई हैव टू डिस्कस द स्टेबल एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक एसिड, सो आई एम गोइंग टू फॉर्म इट्स anion, I'm going to judge its stability by the electronic effect which we have learned, that is resonance, hyperconjugation and inductive. Based on that, I'm going to judge its stability and then I'm going to comment which one is more acidic. I hope you follow the trend. Let's see some question. Now friends, I have this compound in my discussion. These are carboxylic acid. Now you know that carboxylic acids are acidic in nature. नाम में ही acid है friends, तो बाकी तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सो मुझे इन तीनों कंपाउंड्स को एसिडिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। एसिडिटी ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज लेस एसिडिक, दैट आई हैव टू बेसिकली डिस्कस। नाउ सॉरी, CH3COOH, CH3CH2COOH और CH3CH2CH2COOH, आई हैव दीज थ्री कंपाउंड्स। क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम पहले सबके एनायन बनाएंगे। व्हाट डू मीन बाय एनायन? हम लोग क्या करेंगे, इससे H+ निकाल देंगे, H+ रिमूव कर देंगे और ये एनायन बन जाएंगे। दिस इज एनायन, करेक्ट। फिर से हमने यहाँ पे H+ निकाल दिया और ये एनायन बना दिया, हमने यहाँ पे H+ निकाल दिया और ये एनायन बना दिया। तो सबसे पहले हमने एनायन बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ये बना लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, now CH3 is a donor. Now CH3 you know it is a plus I effect group, inductive effect में ये plus I effect group है। This is ethyl, it is a better plus I effect group. You know that whenever the number of carbon chain is increasing, the alkyl, the donating ability of alkyl increases and hence it becomes a good plus I group or strong plus I group. Here we have 3 carbon chain, that is propyl, it is a better plus I than ethyl and methyl. Now just try to understand. जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जो कार्बोकेटायंस होते हैं उनको ERG स्टेबलाइज करता है and the carbon ions they are stabilized by EWG. Now basically I'm not getting a carbon ion but I'm getting oxyanion. Basically मुझे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, मतलब मुझे एनायन मिल रहा है। सो अभी एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी बेचारे के ऊपर बहुत चार्ज है, ऊपर से मिथाइल क्या कर रहा है, मिथाइल इज गिविंग चार्ज, मिथाइल इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब फिर से वो मतलब ज़्यादा चार्ज हो गया इस बार वो, राइट। और कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, स्टेबिलिटी मीन्स न्यूट्रलिटी, हियर इट इज चार्ज्ड। बट ऑन द अदर हैंड CH3CH2 इज अ बेटर डोनर, 2 कार्बन चेन है और अच्छा डोनेट करेगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा एनायन को, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, उसको और मिल रहा है और ज़्यादा चार्ज बढ़ जाएगा। तीसरे में देखिए और अच्छा डोनर आ गया, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, आई होप यू आर एबल टू सी दिस, ऑलरेडी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और डोनर आ गया और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है। तो मैं ज़रा इस तरह से हैंड्स के मोमेंट्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पहला वाला है, इसके ऊपर चार्ज इतना है, इसके ऊपर और ज़्यादा चार्ज है और इसके ऊपर और ज़्यादा चार्ज है, तो चार्जेस आर इंक्रीजिंग। तो जब चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं आएगी। वाई? बिकॉज न्यूट्रल सिस्टम स्टेबल होते हैं, राइट। चार्ज सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं होते। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन कौन फॉर्म करेगा और सबसे कम स्टेबल एनायन कौन फॉर्म करेगा। आई होप यू हैव पॉइंटेड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर। ये वाला एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इट इज़ द मोस्ट स्टेबल। वेरी गुड, आपका चॉइस एकदम सही था, इट इज़ लीस्ट स्टेबल। और ऊपर देखिए हमारा स्लोगन आपके आंसर का वेट कर रहा है, स्टेबल द एनायन स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन? ये एनायन ज़्यादा स्टेबल, तो उससे बनने वाला एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक। दिस इज द एसिडिटी ऑर्डर। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि अल्काइल ग्रुप ERG होते हैं और ERG कार्बन जो भी एनायन है उनकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं और एसिडिटी को भी कम कर देते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो EWG एसिडिटी को, जो ERG होते हैं एसिडिटी को कम करते हैं और EWG एसिडिटी को बढ़ाते हैं, राइट। यही स्लोगन हम लोग फॉलो करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने पहले ही आंसर लिख दिया है, इसे हम लोग हटा देते हैं पहले। तो चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, नाउ वी हैव दिस 3 कंपाउंड्स इन आवर डिस्कशन, CH3CH2CH2COOH। नाउ if you just figure out the difference, here I have 4 carbon chain, here I have 3 carbon chain, and here I have 3 carbon chain, and you can see that there is no branching, there is branching at the second position and there is branching at the third position, right? ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं भाई, देखते हैं। तो अब आप जरा देखिए इन तीनों में बेसिक डिफरेंस को आइडेंटिफाई जो कर लेगा वो आंसर बता देगा। The student who can figure out the exact difference between these 3
will definitely mark the correct answer. What is the difference I'm talking about? The difference is, if you just try to write the molecular formula of all the three, you will come to know that these three structures, they are basically isomers of each other. The common molecular formula will become C5, 226, 639, and 10, and O2. You can see that all the three compounds have the same formula. That means these are isomers. उसमें से अगर आप देखेंगे मिथाइल यहाँ पे काफ़ी दूर है, यहाँ पर मिथाइल काफ़ी नज़दीक है, और यहाँ पे मिथाइल थोड़ा दूर है. अब ये थोड़ा दूर, काफ़ी नज़दीक, किसके रिस्पेक्ट में मैं कह रहा हूँ? आई एम टेलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ COH. आई एम टेलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ COH, क्योंकि वही तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम एनायन बना के चेक कर लीजिए. तो अभी मैं हाइपोथेटिकली H निकाल चुका हूँ. ऐसा आपको समझना है तो ऑफकोर्स माइनस चार्ज आ जाएगा. माइनस चार्ज. H निकाल चुका हूँ मैं, अब वो वापस से लिखना पड़ेगा, तो दैट विल क्रिएट अननेसेसरी ओवर राइटिंग एंड दैट आई वांट टू अवॉइड. नाउ दिस हैज़ नेगेटिव चार्ज. मिथाइल डोनर यहाँ पर है, ठीक है. मिथाइल इतनी दूरी पर है, मिथाइल यहाँ बहुत नज़दीक है, अच्छे से डोनेट कर पाएगा. मिथाइल यहाँ थोड़ा दूर है, तो कम अच्छे से डोनेट कर पाएगा एज कम्पेयर टू द B1, बट इट इज़ डेफिनेटली अ बेटर डोनर देन A1. सो A में डोनर बहुत दूर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहा है, तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी COH के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑलरेडी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. CH3 उसको दे रहा है, बट वो बेचारा दे नहीं पा रहा है अच्छे से, तो इसके उससे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हुआ. बट यहाँ पे B में देखेंगे तो मिथाइल इज़ वेरी क्लोज, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा और नेगेटिव चार्ज को अब्रप्टली बढ़ा देगा. और CH3 यानी कि C स्ट्रक्चर में देखेंगे तो CH3 थर्ड नंबर कार्बन पे है, तो वो उतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ा पाएगा जितना B बढ़ाएगा, बट डेफिनेटली A से ज़्यादा वो चार्ज क्रिएट करेगा वहाँ पे, क्योंकि वो लिटिल बिट क्लोजर है विद रिस्पेक्ट टू A, लिटिल बिट अवे है विद रिस्पेक्ट टू B. तो फ्रेंड्स, ज़्यादा चार्ज कहाँ पर क्रिएट होगा? B में. तो फ्रेंड्स, वो ज़्यादा चार्ज हो जाएगा तो कम स्टेबल होगा. तो सबसे कम वाला जो, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लीस्ट स्टेबल एनायन, लीस्ट स्टेबल एनायन, मोस्ट स्टेबल एनायन, मोस्ट स्टेबल एनायन, एंड लेस स्टेबल एनायन. ठीक है. तो फ्रेंड, लीस्ट स्टेबल वन विल बी लीस्ट एसिडिक, सो B1 विल बी लीस्ट एसिडिक, then C, then A. So A1 will be more acidic, C will be second more acidic, and the B will be least acidic. I hope this makes sense to all of you. Now this is acidity order, and there is something called Pka order. Now Pka is altogether a different term, which you have to remember that it is inversely proportional to acidity. It is inversely proportional to acidity. For the time being, if you remember this, I think that would do a job. However, मैंने यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर की है मैंने एक्सप्लेन करने की, बट चलिए मैं ट्राई कर देता हूँ. ये एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेटेड है, तो मैं हेल्प करता हूँ. आई ट्राई माई बेस्ट, बाकी देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं. So this is your acid, and I have dissolved that into water. I got H plus and A minus. I tried to write the equilibrium constant expression. ऊपर मैंने प्रोडक्ट लिखा है और नीचे मैंने रिएक्टेंट लिखा है. ठीक है, आपको ये सब मालूम है कि हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं, नीचे रिएक्टेंट लिखते हैं. फिर मैंने HA को ये साइड ले लिया और ये H plus A माइनस हो गया, उसको मैंने मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट लिख दिया, जिसको मैंने नाम दिया KA. KA का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. अब देखिए फ्रेंड, अगर कोई कंपाउंड, अब जरा इस एरो के मोमेंट को मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, बिकॉज मैंने इसे पहले ही लिख दिया था. मैंने कहा कि आपको समझ में आएगा, बट मैं इसको फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ. देखिए फ्रेंड, प्लीज़ बी विद मी, मेरे साथ रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इफ एनी कंपाउंड इज मोर एसिडिक, तो ज़्यादा H प्लस देगा. वो एसिडिक है तो ज़्यादा H प्लस देगा ना. व्हेन इट इज गिविंग मोर H प्लस, दैट मीन्स द Ka वैल्यू इज मोर. मैथ्स तो यही कहता है हमें. When Ka value is more, that means I can say that Ka is directly proportional to acidity, right? Because कोई कंपाउंड अगर ज़्यादा एसिडिक है तो ज़्यादा H प्लस देगा, ज़्यादा H प्लस देगा तो Ka वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा. I hope this makes sense. So when H plus value increases, Ka increases. When Ka increases, acidity increases. Now Ka is a very inconvenient term because इसकी वैल्यू 10 to the power माइनस की पावर में वैरी करती है और वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है हैंडल करने के लिए. So for convenience, we have introduced another term called Pka. Now this is not the Amir Khan movie which I'm talking about. It's a mathematical function, Pka. Now Pka, the formula, you have to remember this. There is no option. ये आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड में आपको आते हुए मिलेगा. बाय द वे, आई होप यू नो द फॉर्मूला ऑफ पीएच. अगर आप नहीं जानते हो तो ये है फॉर्मूला ऑफ पीएच. तो अगर यहाँ पे H है तो यहाँ पर मैंने H प्लस लिखा, तो यहाँ पे देखिए ये Pka है. Pka का फॉर्मूला, P इज अ मैथमेटिकल फंक्शन जिसका मीनिंग होता है नेगेटिव लॉग, और ये लिख दिया मैंने Ka. ठीक है.
ये फॉर्मूला है फ्रेंड पीके का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 12th में आएगा, टेंशन की बात नहीं, बट अभी याद रखेंगे तो फायदा, बिकॉज 12th अब स्टार्ट ही होने वाला है। सो पीके इज नेगेटिव लॉग के, दिस इज द फॉर्मूला. Now, as per the logarithmic rule, when negative goes inside, it will just shift the position of reciprocals. It just shift the positions of the numerator and the denominator. So when the negative goes inside, this is Ka by 1, right? I can write Ka by 1. So what will happen when the negative goes inside? It will just shift the positions of numerator and the denominator. The denominator of the 1 will come in the numerator, and the K of the numerator will come in the denominator. So this is the mathematical adjustment which I have made. Now from this I can clearly say that Pka is inversely proportional to Ka, right? तो यहाँ से कंक्लूजन मिल गया Pka is inversely proportional to K. अब देखो ऊपर क्या कंक्लूजन मिला था, K is directly proportional to acidity. तो दोनों को अगर मैं रिलेट कर दूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ Pk is inversely proportional to acidity? Yes, I can definitely say that. तो ये मैंने यहीं पर आप पहले लिख दिया है. तो जो Pka का ऑर्डर होता है, जो एसिडिटी का ऑर्डर होता है, उसका जस्ट उल्टा Pka का ऑर्डर होता है. तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, BCA is the acidity order, that means A is most acidic. तो Pka में ये ऑर्डर हो जाएगा विद A हैविंग द लीस्ट Pka वैल्यू. आई होप दिस मेक सेंस. नहीं समझा कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या फिर आप वीडियो को पॉज करिए और वापस से समझने की कोशिश कीजिए. नहीं समझा तो आई एम हियर, डोंट वरी. अब उसी के बेसिस पे कुछ सवाल हैं फ्रेंड, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. आई हैव सम मल्टीपल क्वेश्चंस विद मी जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा. देखिए, इनको एसिडिटी ऑर्डर में अरेंज करना है. कैसे करें भाई? नाउ दिस इज NO2. पहले आप क्या करिए फ्रेंड्स, पहले आप एनायन बना लीजिए. अब देखिए फ्रेंड, मैंने H+ निकाल दिया है, ठीक है ना. इवन दो देयर इज H+, बट मैं हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने H+ निकाल के एनायन बना दिया मैंने. चलिए, दिस इज NO2, द नेचर इज EWG, यू नो दैट इट इज -I इफेक्ट ग्रुप. हियर इट इज EWG, हियर इट इज EWG. नाउ यू कैन सी from A to B to C, the EWG is going away from the acidic center. So what will happen? यहाँ पे NO2 इतना नज़दीक है तो वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा. जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको और कम करेगा, विड्रॉ करेगा ना फ्रेंड. विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा, और नेगेटिव चार्ज कम होगा तो वो धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ जाएगा. चार्ज कम हो रहा है, न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है, और न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. सो NO2 बीइंग अ विड्रॉवर, इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी. तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल एनायन. देन इट विल बी मोर स्टेबल. ओके, मतलब A और B में कंपेयर करें तो A वाला ज़्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा, क्योंकि NO2 बहुत पास है, यहाँ NO2 दूर जा रहा है, यहाँ NO2 और भी दूर जा रहा है. तो सबसे लीस्ट स्टेबल एनायन तो ये फॉर्म करेगा, ये वाला सिस्टम. तो आप मुझे बताइए व्हाट वुड बी द एसिडिटी ऑर्डर. क्योंकि ये वाला जो एनायन है दिस इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ये वाला एनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो इससे बनने वाला एसिडिक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो A विल बी द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, फॉलोड बाय B, फॉलोड बाय C. आसान है, ये एसिडिटी ऑर्डर है. P के ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, जस्ट उल्टा, A B C. आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू. अगला सवाल आ चुका है हमारे सामने. मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने. नो CH3COOH है, CF3COOH है, CCl3COOH, CBr3COOH और CI3COOH. क्या किया मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे ना H को हटा के फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगाते जा रहा हूँ, ठीक है. तो अभी क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये डोनर है, ये ERG है. ERG एसिडिटी को डिक्रीज करता है. ये विड्रॉवर है. कोई बोलेगा सर कैसे विड्रॉवर है, फ्लोरीन है ना फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो विड्रॉ करता है. -I, ये भी विड्रॉवर है बट अच्छा विड्रॉवर नहीं है एज कम्पेयर टू CF3. नॉट अ बेटर विड्रॉवर एज कम्पेयर टू CCl3. नॉट अ बेटर विड्रॉवर एज कम्पेयर टू CBr3. तो हु इज़ द डोनर? फर्स्ट ऑफ ऑल A इज़ द डोनर, तो वो लीस्ट एसिडिक होगा. देन CI3 इज़ अ पुअर विड्रॉवर एज कम्पेयर टू B, C, D, E. तो E, फिर D, फिर C, फिर B, यानी B वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होने वाला है. आई होप दिस मेक सेंस. समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड. अगला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो कार्बन है दैट इज sp3 कार्बन. दिस, तो अगर आप ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, चलिए हम लोग इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली. सो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है दिस इज़ योर डोनर +I ग्रुप, दिस इज़ विड्रॉवर -I, दिस इज़ अ बेटर विड्रॉवर -I ग्रुप. तो फ्रेंड्स डोनर जहाँ पे रहेगा एसिडिटी कम कर देगा तो A विल बी लीस्ट एसिडिक. नाउ बिटवीन B एंड C, C इज़ अ बेटर विड्रॉवर, तो B इज़ अ पुअर विड्रॉवर एज कम्पेयर टू C. सो B अच्छे से विड्रॉ नहीं कर पा रहा है, तो जब वो अच्छे से विड्रॉ नहीं कर पा रहा है तो C के कंपैरिजन में उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी. सो A लेस देन B लेस देन C. यहाँ पे आ जाइए. और ये क्या लिख दिया मैंने सर, ये क्या लिख दिया, CH2 CH2 का मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द COH, मतलब इसके बीच में कोई भी CH2 यूनिट नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ व्हाट वी कैन मेक द जजमेंट. सो दिस इज A, B, C. नाउ देयर इज नो डोनर, राइट. आप एनायन बना लीजिए हर जगह, तो CH2 है नहीं
तो इट इज़ नॉट अ डोनर, बट यहाँ पे एक CH2 आ गया, इट विल जस्ट डोनेट, ERG बन के जाएगा ये। यहाँ दो ERG हैं, इलेक्ट्रॉन दो देंगे। ERG एसिडिटी को कम करता है, EWG एसिडिटी को बढ़ाता है, यही अपन को याद रखने का है। तो फर्स्ट वाले में तो ERG है ही नहीं, इट्स अ बेटर सिचुएशन फॉर दैट, दिस विल बी मोर एसिडिक फॉलोड बाय दिस। चलिए अगला आ गया है यहाँ पर, एनायन बना लीजिए, एनायन बना लीजिए, एनायन बना लीजिए, एनायन बना लीजिए। नाउ दिस इज माइनस आइफेट ग्रुप, बहुत दूर है फ्रेंड, उतना नहीं खींच पाता, थोड़ा खींचेगा। ये माइनस है, और ये देखो ये तो एकदम बगल में बैठा है, उसको तो कुछ काम ही नहीं करने देता, एकदम बोलता है मैं बगल में बैठा हूँ, सारे तरह इलेक्ट्रॉन ले लूँगा। सो फ्रेंड होता क्या है, डी में जो द विड्रॉवर इज वेरी क्लोजर, सो इट विल गोइंग टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, इट विल रिड्यूस द नेगेटिव चार्ज, इट विल रिड्यूस द नेगेटिव चार्ज, इट विल मेक द स्ट्रक्चर more neutral means more stable anion, more stable anion means more acidic compound. So D is more acidic, followed by C, followed by B, followed by A में क्यों लीस्ट एसिडिक हुआ, क्योंकि F इतना दूर चले जाता है कि वो विड्रॉ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो कम नहीं हो पाता और वो अनस्टेबल एनायन रहता है। Pka ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगला सवाल ये देखिए फ्रेंड, NO2 EWG होता है, CH3 ERG है, फ्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, लेकिन अगर आप NO2 और EWG F को कंपेयर करेंगे तो NO2 इज अ बेटर विड्रॉवर, सो बेटर विड्रॉवर होने की वजह से दिस मोर एसिडिक देन C, एंड देन B विल बी लीस्ट एसिडिक क्योंकि वो तो डोनर है। आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। विद दिस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कशन इज ओवर। वी आर गोइंग टू have some discussion on what do you call the stability of conjugated intermediate, ठीक है। तो फ्रेंड इसी के साथ हमारा ये एसिडिटी वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। We will meet in the next video. Till then, goodbye.